Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nasratullah Khan Katoze, lecturer in Edwards College, Peshawar. So because of pandemic condition, we are going to start the classes online because of corona vacation. So the topic is oxidation of carbonyl compound. There are two types of carbonyl compound. Number one, aldehydes. Number two, ketone. Oxidations of carbonyl compound. There are two types of carbonyl compound. There are two types of carbonyl compounds. Number one, aldehydes. Number two, ketone. Aldehydes. Number two, ketone. There are two types of carbonyl compound. Number one, aldehydes. Number two, ketone. Both undergo oxidation. Can be oxidized. Can be oxidized easily. Ketone, it can be oxidized. It can be oxidized with difficulty. With very difficulty. It can be oxidized by both strong oxidizing agent and weak oxidizing agent. It can only be oxidized by strong oxidizing agent and high temperature. Dear students, oxidations of carbonyl compound. There are two types of carbonyl compound. Number one, aldehydes. Number two, ketone. Both can be oxidized. Aldehydes can be oxidized very easily, but ketone can be oxidized with a great difficulty. Aldehydes, it can be oxidized by both strong oxidizing agent and weak oxidizing agent, but ketone can only be oxidized by very strong oxidizing agent, not weak oxidizing agent, and also by high temperature. So दो बातें जहन में याद रखो कि अल्डिहाइड्स और कीटोन की दोनों की ऑक्सीडेशन हो सकती है एमसीक्यूज के लिए, पर एंटिटीज के लिए ये बात दिल में लिखो कि अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा इजी है. क्यों? बिकॉज द कार्बोनिल कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, is directly attached with the hydrogen. ये aldehydes can be oxidized very easily because the carbonyl carbon is directly attached with the hydrogen, but ketone cannot be oxidized easily because the carbonyl carbon, this carbon, is not directly attached with any hydrogen. So we can say ऑक्सीडेशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों पॉसिबिलिटी है. अल्डिहाइड्स भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन भी. ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा, ये मुश्किल के साथ. ये स्ट्रांग और वीक दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, पर इसकी ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से होगा. अब एक बात ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे साथ, ये दो किस्म के हैं. एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Types of oxidizing agent. Types of oxidizing agent. There are two types of oxidizing agent. Number one, strong oxidizing agent.
strong oxidizing agent. Number 2, weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दो अकसाम है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल एसिडिफाइड के इम्यूनोफोर, एसिडिफाइड के 2Cr2O7 Ag2O and there is HNO3. और weak oxidizing agent Tollens reagent. Number 2, filling reagent. Number 3, Benedict reagent. Benedict reagent. इससे पहले मैंने एक बात आपको क्लियर किया कि कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, लेकिन अल्डिहाइड्स के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स की अब हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। Oxidations of aldehydes. Point number first. There are two types of oxidation. There are two types of oxidation of aldehydes. Number 1, oxidation by strong oxidizing agent. By strong oxidizing agent. Number 2, oxidation by weak oxidizing agent. Point number first, oxidation of aldehydes by strong oxidizing agent. By strong oxidizing agent. Dear students, oxidations of aldehyde की हम बात करते हैं, लेकिन strong oxidizing agent, weak नहीं। तो point number first, the oxidation of aldehydes in the presence of strong oxidizing agent produces carboxylic acid, corresponding carboxylic acid. ये मेरे साथ अल्डिहाइड्स हैं और उसकी मैंने के एमिनोफोर और H2SO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन किया, तो ये मुझको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्डिहाइड की दो अकसाम है, एक है ऑक्सीडेशंस बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्डिहाइड्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन, और दूसरा बाय वीक। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। पॉइंट नंबर 2, ये इधर तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। हाँ, अब है पॉइंट नंबर 2, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, the number of carbon atoms in carboxylic acid
in carboxylic acid and aldehydes will be same. डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे साथ एसिटल्डिहाइड है और इस एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से केमिनोफोर की मौजूदगी में और H2SO4 की मौजूदगी में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, तो उसमें भी 2 कार्बन और उसमें भी, मैं ये कहना चाहता था कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन एटम, कार्बन 2, हेयर भी 2, एसिटल्डिहाइड में भी 2। ये बात आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3, aldehydes can be easily oxidized than ketone because of directly attached hydrogen to carbonyl carbon। ये आपके सामने है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड्स है, उसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन है। ये कीटोन में ऐसा आपको नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। देखो, कीटोन में कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है कि उसके साथ अटैच है। कार्बोनिल कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, इधर अटैचमेंट नहीं है। दैट इज व्हाई कीटोन आर weak. Ketone can be oxidized with difficulty. हाँ, अब oxidation of ketone by oxidation of aldehyde by weak oxidizing agent. Oxidation of ketone by weak oxidizing agent. डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल टोलेंस टेस्ट एंड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। टोलेंट रिएजेंट ए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे कोर्स में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2 किस्म की रिएक्शन है। नंबर 1, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट। नंबर 2, ऑक्सीडेशन बाय filling reagent, by filling reagent। so हम कहते हैं oxidation by Tollens test, the most important topic है ये। हाँ, oxidation by Tollens test, Tollens reagent। Dear students, what is mean by Tollens test? That test which differentiate aldehydes from ketone, that will be called Tollens test। Tollens test में aldehyde को ketone से जुदा किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये पहली जो सेंटेंस जो मैं लिखना चाहता हूं, दिस टेस्ट, ये टोलेंस टेस्ट की बात करता है। दिस टेस्ट डिफरेंशिएट aldehydes from ketone। एक बात, पॉइंट नंबर 2, only aldehydes gives Tollens test
Point number 3. Ketone does not give the tolerance test. Oxidation by tolerance reagent. तो सबसे पहले टोलेंट टेस्ट, दिस टेस्ट डिफरेंशिएट अल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन. एक बात तो आपके जहन में बैठना चाहिए. नंबर 2, ओनली अल्डिहाइड्स गिव टोलेंट टेस्ट. को हाँ, सिर्फ अल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकता है, कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट. लेकिन इधर एक्सेप्शंस है, दो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं नोट के फॉर्म में. नोट, although ketone does not show tolerant test, लेकिन MCQs के लिए एक बात याद रखें, only those ketone which possesses alpha hydroxy ketone show tolerant test. Alpha hydroxy ketone also shows tolerance test. एमटीटेस के लिए बात याद रखें, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कहते हैं. ये दर्द है कि OH और ये CH3 ऐसा, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का नाम दिया जा सकता है. Alpha hydroxy ketone can show aromatic aldehyde, sometimes does not show tolerance test. और एक लास्ट पॉइंट, formaldehyde या formic acid can also show the tolerance test. Dear students, 5 बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट की, बल्कि सबसे ये पॉइंट नंबर 4, ये 5, ये 6, 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी. नंबर 1, tolerant test differentiate aldehydes from ketone. एक बात. फिर इसके बाद है tolerance test क्वालिटेटिव भी है, ये डिटेक्शन की दी है, the detection of element in a compound that is called quality. फिर है कि only aldehyde show tolerant test, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट बता सकता है, कर सकता है. अल्फा, और इस अल्फा कार्बन पे जब हाइड्रोक्सिल आ जाए, देयर इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. एरोमेटिक एल्डिहाइड समटाइम टोलेरेंट टेस्ट शो नहीं करता, ऑल्दो वो एरोमेटिक होता है, एल्डिहाइड होता है, पर वो ये टेस्ट कभी कभी नहीं शो करता. फार्मिक एसिड कैन शो टोलेरेंस टेस्ट. इसका व्हाट इज मीन बाय टोलेरेंट रिएजेंट? ये टोलेरेंट रिएजेंट क्या है? What is mean by tolerance reagent? Dear students, tolerant reagent है the mixture या the mixture of AgNO3 and NH4OH is called tolerance reagent. इसको टोलेरेंस रिएजेंट कहा जाता है. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी इसको कहते हैं. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी उसको कहा जाता है. टोलेरेंट रिएजेंट AgNO3 और NH4OH के मिक्सचर को टोलेरेंस रिएजेंट कहा जाता है. इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहा जाता है. तो दीज आर कॉल्ड टोलेरेंट रिएजेंट. अब मैकेनिज्म क्या है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, तो मैं जरा मैकेनिज्म टोलेरेंट रिएजेंट का लिखना चाहूंगा. मैकेनिज्म when aldehyde
reactor with the Tollens reagent, it produces a silver mirror. It produces a silver mirror, produces mirror at the side of the test tube, या at the walls of the test tube, at the walls of the test tube. जब अल्डिहाइड टोलेंट मिक्सचर टोलेंस रिएजेंट के साथ मिल जाता है तो उसमें ये टेस्ट ट्यूब के वाल्स पर बिल्कुल ऐसा मिरर बन जाता है और ये आईने की तरह देखने लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये अल्डिहाइड्स है। उसका जो रिएक्शन है वो ये है कि ये हमारे साथ RCOH है, अल्डिहाइड्स है। जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ टोलेंट रिएजेंट तो ये हमको देता है RCOOH। अब उसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम रिएक्शन को फुल लिखे तो RCOH प्लस AgNH3 होल 2 प्लस 1 इस पे आएगा। ये जब हम AgNO3 और NH4OH को मिलाए तो इससे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स उससे बन जाएगा। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ऑक्सीडेशन RCOOH ये दे देंगे हम अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो चुकी है। पहले एक ऑक्सीजन था, अब एक ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन उसका हुआ। या दूसरी पे पहले इधर उसमें जो हाइड्रोजन था अब वो चला गया, ये खत्म हो चुका है, देखो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो इधर ऑक्सीजन गेन हो चुकी है, इधर हाइड्रोजन लॉस हो चुका है। प्लस Ag मेटेलिक सिल्वर प्लस NH3 और प्लस H2O ये हमारे साथ मेटेलिक सिल्वर है, मेटेलिक Ag है, सिल्वर है और इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है, इधर +1 है। तो मैं नोट लिखना चाहता हूं, नोट इंटिटिस के लिए, अल्डिहाइड रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। अल्डिहाइड्स reduces टोलेंस reagent एक बात। नंबर 2, Ag is reduced in this reaction, is reduced from +1 to 0। ये सिल्वर मिरर हमारे साथ जो अल्डिहाइड्स हैं उसने टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड टोलेंट टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है कि अल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो नहीं करता। अल्डिहाइड को कीटोन से जुदा करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ये हमें सिल्वर मिरर देता है, ये सिल्वर बिल्कुल आईना बनाता है। अल्काइन टर्मिनल अल्काइन भी ये टेस्ट शो करता है, बल्कि वो हमको सिल्वर मिरर नहीं देता, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। वो हमको सिल्वर मिरर नहीं बना दे सकता, हाँ वो हमको वाइट पीपीटी जरूर दे सकता है।